Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Am I audible? One of you please confirm. They can hear me clearly? Yes, Nasri. Assalamu alaikum. Jazakillah khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. We shall begin inshallah. All right. Dream of victory and death. When Abu Bakr radiallahu anhu was contemplating the military campaign in Ash-Sham, Surahbil ibn Hasama radiallahu anhu, one of the Muslim military commanders during the apostate wars, came to him and said, "O Khalifa of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, are you contemplating whether or not we should attack?" I think we had done this. 1 minute. Okay, I think this is a repetition. Whether we should attack the army at Sham or not, on which Abu Bakr radiallahu anhu said, "But I have told no one about my thoughts regarding the matter." 1 second. I think I'm repeating this page. Okay, choosing the next Khalifa. The Prophet's companion consulted one another regarding the matter of choosing the next Khalifa of the Muslim nation. Like we know very well that Shurahabil saw a dream, and in that dream there was an indication. One was the glad tiding and one was the news of Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu's death. तो ये जो एक वन ऑफ द आर्मी लीडर्स थे शुराबिल रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने अपना एक ख्वाब जो है उनको बयान किया और उसकी ताबीर के तौर पे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु केम टू नो दैट इंशाल्लाह they will be victorious in this war, but at the same time he came to know also that उनकी जो डेथ है वो अनकरीब है. Choosing the next Khalifa. The Prophet's companion consulted one another regarding the matter of choosing the next Khalifa of the Muslim nation. Whenever a companion was nominated for the job, he would refuse and suggest someone else in his place. Each one of them thought that his Muslim brother was better and more worthy than he was. Again, a very rare quality and a very different हुस्न अखलाक हियर कि अगर कभी किसी का फॉर एग्जांपल प्रमोशन हो रहा है या कोई नॉमिनेशन हो रहा है या कोई अपॉइंटमेंट की बारी आ रही है तो एक साहबी जो है वो दूसरे को नॉमिनेट करते थे. उन्हें लगता था कि हमसे ज्यादा वो उसके ज्यादा लायक है या वर्दी है. हमारे यहाँ पे क्या होता है, जनरली हम लोग एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, हम लोग एक दूसरे को नीचे गिराकर उसके सर पे पैर रखकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो देखें कितना ऑपोजिट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर है. नो वंडर कि हमारे कामों में बरका नहीं रही. एंड लुक एट देम, सुब्हानअल्लाह, दे कीप ऑन प्रोग्रेसिंग. For this reason, the Prophet's companion, unable to arrive at a decision among themselves, returned to Abu Bakr radiallahu anhu and said to him, "O Khalifa of the Messenger of Allah, your opinion is our opinion. Appoint a successor for us." He said, "Then give me some time so that I can see what is the best in the view of Allah Azza wa Jal and what is the best for his religion and his slaves." तो जब सहाबास के आपस में इस बारे में confusion रहा, वो एक दूसरे को nominate करते रहे, so they didn't arrive at a decision. So they came to Abu Bakr radiallahu anhu and told him कि you suggest, आप advise करें what is best. And then Abu Bakr radiallahu anhu borrowed some time. This is also one of the things that that is a good quality. If at all you are being approached by someone, अगर आपके पास कोई सलाह मशवरा के लिए कोई ओपिनियंस या सजेशंस के लिए आए तो एकदम एक यानी बहुत जल्दबाजी में उस चीज को आप मत हैंडल करें. borrow some time, take some time, do some contemplation, make some dua, look here and there, do some research, and then give an advice. Because one of the rights of Muslim over another Muslim is when somebody asks you, seeks an advice, then you give a good advice. तो वो good advice जो है कई बार आपकी जो temperament या आपकी जो कैफियत है दिमागी उस वक्त you are not focused. So what you can do is you can borrow time and then decide what to do. So similarly, this was not a small thing. It was a very important task, choosing the next successor. यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारा दारोमदार जो है मुस्लिम नेशन का, उम्मा का जो काम है वो सारा कुछ आगे क्या जो भी है वो ये बंदे ने चलाना है. तो इट इज नॉट समथिंग दैट ओवरनाइट इस बारे में कोई इंसान जो है डिसाइड कर ले. देयर इज लॉट ऑफ दुआ, लॉट ऑफ कंटेम्पलेशन, लॉट ऑफ सीकिंग अल्लाह's हेल्प एंड असिस्टेंस इन अराइविंग एट अ डिसीजन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और की पोजीशन है. Abu Bakr radiallahu anhu, as did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam before him, always consulted his companions before making an important decision. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये करते थे, अपने सहाबा से डिस्कस करते थे, कंसल्ट करते थे before arriving at a decision. Similarly, Abu Bakr radiallahu anhu also did. In keeping with this policy, he discussed the matter with the few eminent companions जो important, खास और experienced, knowledgeable थे, उनसे कंसल्ट किया. पहले उन्होंने बुलाया अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदियल्लाहु अन्हु, to whom he said, "Tell me about Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu." Abdul Rahman radiallahu anhu said, "With regard to what you're asking me about,
You have more knowledge than I do. Abu Bakr radiallahu anhu said, even so, Abdurrahman radiallahu anhu said, he is by Allah better than what you think of him. What a beautiful response. जब उन्होंने अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु अन्हु से पूछा कि अबू बकर इब्न खत्ताब के बारे में आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा आपको उनके बारे में ज्यादा मालूमात होगी, because he has spent more time with him, he is more closer to him. फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, give me your opinion about it. तो उन्होंने कहा कि वो आप जैसा सोचते हो उससे भी बेहतर है. Other companions had similar answer to the same question. Yani these people are so wise, so knowledgeable, mashallah. Uthman ibn Affan radiallahu anhu said, you know more about him than any of us do. Oh Allah, what I know about him is that his secret private life is better than his open public life, and that there is no one among us that is equal to him. Another good traits उन्होंने और ऐड किया उस्मान इब्न अफान रदियल्लाहु अन्हु ने. उन्होंने कहा कि सेम चीज कि आप जो है उनको हमसे ज्यादा बेहतर जानते हो, और उनकी जो सीक्रेट और प्राइवेट लाइफ है वो उनकी पब्लिक और ओपन लाइफ से ज्यादा बेहतर है. अभी इधर एक पॉइंट जो है वो गौर करने वाली बात है. लाइक फॉर अस, वी एज एन इंडिविजुअल, हम सब अपना अपना जायजा लेंगे कि हम लोग जो है ना, वी ऑलवेज हैव टू फेसेस. वन इज व्हाट वी आर इन आवर खलवत, इन आवर, जब हम अकेले होते हैं, सेक्लूजन में होते हैं, और एक जो हमारा पब्लिक के सामने फेस होता है. इट शुडंट बी लाइक दिस, बट यस, समथिंग व्हिच इज ऑब्वियस एंड वेरी नेचुरल वो रहेगा कि वी आर टू कैजुअल व्हेन वी आर होम, वी आर इन अवर ट्रू सेल्फ जब हम अकेले होते हैं. और हमारी जो एक्टिविटी है ना, आप ये अपने आप, अब हाउ गुड ह्यूमन बीइंग यू आर, या आपका रिश्ता विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल कितना स्ट्रांग है, यू कैन गेज विद दिस थिंग. कि जब आप देखें कि आप जब अकेले में कौन सी एक्टिविटी में मुब्तला होते हैं, कोई शो ऑफ नहीं, किसी को दिखाना नहीं, किसी का कोई इम्प्रेस करने वाला काम नहीं, देयर इज नो फेक एट ऑल, यू आर योरसेल्फ. तो उस वक्त आप कौन सी एक्टिविटी में मुब्तला होते हैं? क्या आप अल्लाह ताला के साथ रुजू करते हैं? क्या आप कोई नेकी का काम कर रहे होते हैं? क्या आप कुछ सदका खैरात कर रहे होते हैं? या वट एवर यू आर डूइंग इन सेक्लूजन, अकेले में आप क्या कर रहे होते हैं? क्योंकि लोगों के सामने वी हैव अ हैबिट ऑफ पुटिंग अप अ वेरी नाइस, गुड, पायस इमेज, but in reality what we are is what we are in seclusion when no one is watching. No wonder कि वो सारी दुआएं या वो सारी इबादतें या वो सारी नेकियां जो हम अकेले में करते हैं उसका वेटेज ज्यादा होता है, क्योंकि वो प्योरली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह होता है, प्योरली टू सीक अल्लाह's प्लेजर होता है. तो इनका जो था तर्ज अमल खलवत में, अकेले में, seclusion में बहुत ज्यादा बेहतर था in comparison to जलवत, which is amazing. Usaid ibn Hudayr radiallahu anhu said, next to you, he is the best among us. He is happy when happiness is called for, and he becomes angry when anger is called for. And that which he keeps secret is better than that which he displays openly. And there is no one that is stronger and better able to take on his responsibilities. अब इधर चंद पॉइंट्स जो हम लोगों को लेना पड़ेगा into consideration कि जब खुशी का माहौल हो, खुशी की खबर हो तो वो खुश होते हैं, जब गुस्से वाली बात हो तो वो गुस्से हो जाते हैं. नॉर्मल नेचुरल ह्यूमन बीइंग. And that he keeps secret is better than that which he displays openly. जो वही मैंने आपको जो बताया, seclusion में जो है वो बेहतर है rather than जो खुला हुआ है. और there is no one stronger and better able, यानी ये देखिए जो ability है ना, जो मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि एक बंदा जो skilled हो, एक बंदा जो काबिल हो, एक बंदा जो responsibilities लेने लायक हो. यानी अभी sadly हमारे आज की situation भी आप देखेंगी कि हम लोग, यानी बहुत सारे केसेस हैं, आई कीप सीइंग अराउंड मी, कि जो हमारे मर्द हजरात हैं, ओके, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं. दे डोंट अंडरस्टैंड कि उनकी जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं, उनके जो फर्द हैं, वो भी फर्द अल आइन वाले फर्द टाइप से हैं, जिसके लिए उनकी पूछ होगी, वो उसको अदा नहीं कर पा रहे. दे आर फेलिंग एज हस्बैंड्स, दे आर फेलिंग एज फादर्स, दे आर फेलिंग एज ब्रदर्स, दे आर फेलिंग एज सन्स. और मैं सिर्फ मर्दों को ही यानी खास तौर से अटैक करने के उसमें नहीं हूं, बट दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन मेजॉरिटी, कि आदमी जो है वो अपनी ड्यूटीज, जो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अदा नहीं कर पा रहा है. फॉर सम रीजन वो केपेबल नहीं है, एबल नहीं है, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए हैं, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन द वुमेन फोर्स. यानी एन नंबर ऑफ फीमेल्स आई एम सीइंग अराउंड मी, मेरे पास यानी काउंसलिंग के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या सलाह मशवरा के लिए या जितने हमारे ये सिस्टर्स के ग्रुप वगैरह हैं, इंडिविजुअली दे अप्रोच, एंड व्हेन वी सी इट्स हार्ट ब्रेकिंग कि वो आदमी जिसने, जो अल्लाह ताला ने उसको एक औरत का महरम बना के, क़वामुन रजालुन, बड़े बड़े टाइटल्स देके
उसकी कुव्वत के मुताबिक अल्लाह ताला ने उसके ऊपर बोझा डाला है, और वो आदमी अपनी रोल को छोड़कर वो घर बैठा है, वो मिस्कीन बन गया है, वो अपना ही सिंपैथी गेन कर रहा है. I mean, may Allah help us, but this is a very bad situation. So what can we do? We as a woman, what can we do? इसमें एक औरत का भी रोल होता है. यानी एक औरत, एक तरबिया जो है ना वो माँ करती है, और एक तरबिया जो है वो बीवी करती है. तो इसमें मैं कहूंगी कि एज अ वाइफ ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखें कि आप कितना अपने हस्बैंड्स को, अपने स्पाउस को एबल बनाती हैं. आई हैव सीन वुमेन जो बड़ा खुश होती है, उन्हें लगता है कि सिर्फ खाना बनाकर उनको अपने हाथों से खिला देना या उनके लिए बनाकर रख देना में उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है. ये गलत है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, या आपने इस एंगल से सोचना चाहिए कि हमें एक दूसरे को जन्नत ले जाने वाला रास्ता हम कैसे आसान कर सकते हैं. जैसे हम खाने पीने, कपड़े, दुनियादारी के बारे में सोचते हैं, वैसे हमें उनकी आखिरत के बारे में सोचनी चाहिए. हमें ये देखना चाहिए कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे अच्छी तरह से अदा कर सकें. लाड़ प्यार मोहब्बत अपनी जगह पर है, बट असली चाहत वो है जो एक इंसान की आखिरत को संवारे. Yani, and the same rule applies in the case of parenting also. Like many mothers, they think they have cooked the food, उनके कपड़े बच्चों के अच्छे खरीद लिए, अच्छी तरह एजुकेशन, सेक्युलर एजुकेशन दे दी, so their role is done. No, it's not. Until and unless आपने ऐसा इंतजाम नहीं किया कि आपके बच्चों को आप आग से बचाएं, तब तक कि आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती है. एंड इट इज नॉट जस्ट अ वन टाइम अफेयर. जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपका रोल खत्म नहीं होगा. आपके ऊपर अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है, और आप इसकी बहुत पूरी 50-60% आपका इसमें रोल है. तो ये खत्म होने वाला रोल नहीं है. आपको सुपरवाइज करना है, आपको गाइड करना है, आपको उनको मेंटरशिप करनी है, आपको एनकरेज करना है. एंड द सिमिलर गोज फॉर द स्पाउसेस. आप देखें अगर कितने सारे हैं जो आदमी नमाज नहीं पढ़ रहे, सलाह नहीं उनकी हो रही है, उनको कुरान नहीं आता है, वो अस्कार की पाबंदी नहीं है, दीन की तरफ, हराम हलाल की नॉलेज. अगर आप स्टूडेंट ऑफ नॉलेज बनी है, तो आपका फर्ज है कि सबसे पहले अपनी फैमिली को करें. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दावत दी थी? अपने घर वालों को दी. एंड स्लोली एंड इवेंचुअली वो आगे बढ़े. तो ये आपका फर्ज है कि आप अपनी फैमिली को, इमीडिएट अपने स्पाउस को, बिकॉज अकेले जन्नत में जाने का कोई फन नहीं है. द बेस्ट थिंग इज बिइज़्निल्लाह अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए, और फिर हमारे सारे एंटायर फैमिली एंड लव्ड वंस के साथ, हमारे फ्रेंड्स, हमारे मस्जिद, हमारे क्लासेस वाले, सब जितने हम एक दूसरे के साथ मिल बैठ के जन्नत की नेमतों को एंजॉय करें या रब. बट आप अगर इस मामले में सेल्फिश नहीं हो सकते. सो यू हैव टू मेक श्योर, एंड वी एज अ वुमेन, हम लोगों को हमारे लव्ड वंस की खुशी में हमारी खुशी छुपी होती है. तो हमें ये डेफिनेटली वी हैव टू मेक श्योर कि दुनियावी चीज के बारे में जैसे हम बहुत पर्टिकुलर हैं, सिमिलरली वी विल हैव टू make sure that we are working towards making their akhira better. बिइज़्निल्लाह. So start working on this, और कोशिश करें कि हम लोग उनको जो है capable बनाने में भी हेल्प करें, उन लोगों की टैलेंट्स और स्किल्स को भी पॉलिश करें. ये हमारा फर्ज नहीं है सिर्फ कि सिर्फ खाना खिला दिया, आराम करवा दिया, कपड़े आयन कर दिए, डन. दीज आर जस्ट नॉर्मल दुनियावी छोटी मोटी हकीर चीजें. मेन टास्क हमारा कुछ और है, तो उस पर फोकस करना है. So the main point is that he was able to take the responsibility. Similarly, Abu Bakr radhiyallahu anhu consulted Sayyid ibn Zaid radhiyallahu anhu and a number of other companions from the Ansar and the Muhajirun. The vast majority of them were of the same opinion that Umar radhiyallahu anhu was the most worthy to succeed Abu Bakr radhiyallahu anhu as the Khalifa of the Muslim nation. The sole dissenter in this regard was Talha ibn Ubaidullah radhiyallahu anhu, who was afraid of Umar's harshness. Talha radhiyallahu anhu said to Abu Bakr radhiyallahu anhu, "What will you say to your Lord when he asks you about why you appointed Umar over us, even though you knew all along about his harsh demeanor?" अभी ऑफ कोर्स सबकी एक ही ओपिनियन नहीं हो सकती. आई सेड दिस पीपल वर वेरी स्ट्रांग. ये अपना उनका एक स्पाइन थी. दे डिडंट फील हेजिटेंट टू रेस देयर ओपिनियन. तो इसके बीच में एक सहाबा जो थे, तलहा रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने कहा कि वी ऑल नो उमर रदियल्लाहु अन्हु थोड़े सख्त किस्म के थे. उनकी स्पीच थोड़ी सी अपराइट एंड स्ट्रेट हुआ करती थी, तो लोगों को वो थोड़े से रूड और एरोगेंट लगते थे. तो वो जो हार्श उनका बिहेवियर था, उसके बारे में ही वाज लिटिल कंसर्न कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, यू नो वेरी वेल हाउ उमर रदियल्लाहु अन्हु's बिहेवियर और हिज टेम्परामेंट इज. तो आप ऐसे आदमी को हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबल बनाकर जाएंगे, तो आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे?
So Abu Bakr radiallahu anhu said, help me sit down, after which he said, is it by Allah that you are trying to frighten me? Verily, one is truly a loser if one acts regarding your affairs, the affairs of the Muslim nation, in a wrongful and an oppressive manner. In answer to your question, I will say, O Allah, I have appointed over them the best of your people. It is related that Abu Bakr radiallahu anhu further justifies his decision to appoint Umar radiallahu anhu in spite of his harshness by saying that is because Umar sees me as soft, as being soft, but when the responsibilities of leadership falls on him, he will abandon much that he is now. He will act less harshly than he does now. Which is again talking about human nature. बहुत अच्छी तरह से उनके सवाल को उन्होंने हैंडल किया. कहते तुम मुझे अल्लाह की बात से डरा रहे हो. Definitely I am like, he is conscious about it. He will not do anything. किसी oppressive बंदे को वो उनके ऊपर मुलतवी नहीं करेंगे. तो उन्होंने कहा कि definitely I am aware of the situation and he is also assuring him. उनको कह रहे हैं कि अभी उनके ऊपर responsibility as a खलीफा पड़ी नहीं है. But once he sits on that chair, then he will change his harsh behavior. एंड ये भी एक ह्यूमन नेचर है. यानी जब तक आप वो हॉट सीट पे नहीं बैठते, जब तक कि आप वो उस लेवल पे नहीं आते, यू कीप, जैसे हमने देखा है कंपनी स्ट्रक्चर्स में, द टॉप गाइज आर ऑलवेज वेरी हम्बल, वेरी नाइस, बट द मिड मैनेजमेंट इज ऑलवेज वेरी हार्श बिकॉज दीज आर द गाइज हु आर वर्किंग एट दैट लेवल, और वो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन होता है. वेयर इज द टॉप गाय, they are so humble because they know they have the authority to take a decision. So that is how it works. So जब ये भी इस position पे आ जाएंगे, the topmost position, he will become little softer. So that's how he assured him. Time to depart draws near. Aisha radhiyallahu anha said, Abu Bakr radhiyallahu anhu's illness began when he took a bath on a cold day. He then had a fever for 15 days, and on each of those days he did not come out for prayer. अभी बहाना तो बनना ही है, मौत का वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है सबके लिए. तो इनकी इलनेस कैसे शुरू हुई? एक दिन उन्होंने कोल्ड डे पे बात लिया और उनको बुखार रहा तकरीबन 15 दिन, और ये 15 दिन जो है वो बाहर सलाह के लिए नहीं आ सके. इंस्टेंट उन्होंने उमर रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि वो प्रेयर लीड करे. People would visit him, but the person who kept closest throughout the illness was Uthman radiallahu anhu. When his condition worsened, someone said to him, will you not call for a doctor to come and check on you? He said, verily, he has already seen me, and he has said, verily, I always do and succeed in doing whatever I will to occur. तो किसी ने, जो सबसे ज्यादा उनका ख्याल रख रहे थे वो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु थे, उनकी कंडीशन खराब होने लगी. तो किसी ने कहा आपने डॉक्टर को नहीं बुलाया? कहते ऑफ कोर्स मैंने बुलाया है, उन्होंने देख भी लिया है, और मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो यानी करने वाला है. Aisha radiallahu anha reported that during the final stages of his illness, Abu Bakr radiallahu anhu said, go and see how much extra wealth I acquired since I was appointed as leader of the Muslim nation, and send that extra amount to the Khalifa who will succeed me. तो सबसे पहली फिक्र नहीं है कि भाई ये मेरी विरासत का क्या हो रहा है, मेरे पैसे एंड ऑल. उनकी जो जिम्मेदारी है अभी तक वो उसी को ही अदा करने की कोशिश कर रहे हैं. इज टेलिंग, जो उनके खजाने में पैसे हैं एज अ मुस्लिम नेशन, वो ले जाकर, जो भी एक्सेस है वो ले जाकर जो नया खलीफा यानी उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु उनके पास पहुंचाया जाए. Aisha radiallahu anhu said, we did an inventory of his wealth and he found that the only extra wealth he had was a Nubian slave who would carry his children for him and a camel that we used to water one of his gardens. तो क्या निकला? आप देखें, खलीफा ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मुस्लिम नेशंस, क्या निकला उनके एक्स्ट्रा वेल्थ, सो कॉल्ड एक्स्ट्रा वेल्थ में से? एक स्लेव, नूबियन स्लेव, जो कि उनके बच्चों को उठाकर लेकर आते थे, कैरी करते थे, और एक कैमल जिसको वो यूज करते थे वाटर करने के लिए, अपने पानी देने के लिए गार्डन्स को. And we sent those two to Umar radiallahu anhu, who upon receiving them cried and then said, may Allah have mercy on Abu Bakr radiallahu anhu. Verily he has been toiling and he has become very fatigued since the death of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ये जैसी चीजें उनके पास दोनों पहुंचाई गई, स्लेव और वो कैमल, तो उसको देखकर उमर रदियल्लाहु अन्हु रोने लगे और उनको दुआएं देने लगे और कहते हैं डेफिनेटली जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत थके हैं. While Abu Bakr radiallahu anhu was on his deathbed, Aisha radiallahu anhu read some verses of poetry to him. When she was finished, Abu Bakr radiallahu anhu looked at her with an angry expression on his face and then said, it is not as you say in your poem, O mother of the believers, but rather the saying of Allah is more truthful. And the stupor of death will come in truth. This is what you have been avoiding. ये सूरा 15 वर्स नंबर 19 से है. जब उनका और टाइम करीब आने लगा तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने कुछ पोइट्री उनके सामने रिसाइट करने लगी. तो इस पर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु एंग्री और गुस्से हो गए और उन्होंने कहा कि द वर्ड्स ऑफ कुरान, जो अल्लाह की जो कलाम है वो ज्यादा हक में है. फिर उन्होंने
ये वर्स ऑफ सूरा नंबर 50 वर्स 19 को रिसाइट किया। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने फिर कहा, ओ आयशा रदियल्लाहु अन्हु, देयर इज नो वन इन माय फैमिली हु इज मोर बिलवड टू मी देन यू। Nonetheless, you took some fruits from the garden, one of my gardens, and I did not feel comfortable about that. So return it to the contents of my state so that it can be distributed properly to my inheritors along with the rest of my state. She said yes, after which she complied with his request. One second, guys, there's someone at the gate.
हेलो हेलो हेलो, यस रुखसार। नहीं, मेरा साउंड का भी इश्यू हो गया था साथ में। एनीवे, थैंक यू। वर यू एबल टू लिसन टू मी? नो नो नो, मेरा काफी मिस हुआ। अच्छा, नहीं नहीं, पूरा बंद हो गया था। मी टू। नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ कौन से पॉइंट से आप लोग नहीं सुने? प्लीज लेट मी नो, बिकॉज आई हाँ, जस्ट मैंने वहाँ जब आयशा रदी अल्लाह का आप बता रहे थे ना कि वो कुरान लगाने बोले, वही हाँ, बस उतना ही सुना। हाँ, पोइट्री, हाँ पोइट्री के बदले कुरान बोले। ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम देयर। फिर उन्होंने आयत पढ़ी, सूरा नंबर 50 वर्स नंबर 19 की आयतें पढ़ी उन्होंने। फिर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा कि ओ आयशा रदियल्लाहु अन्हा, देयर इज नो वन इन माय फैमिली हु इज मोर बिलवड टू मी देन यू, नॉनदलेस यू टुक सम फ्रूट्स फ्रॉम द गार्डन। यानी आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने, उनकी बेटी है वो, ओके, उम्मुल मोमिनीन है, उनका भी आप रुतबा देखें। तो उन्होंने क्या किया था कि कुछ फ्रूट्स जो है उनके गार्डन में से लिए थे, तो वो कह रहे हैं कि वो आप लौटा दो, और जो विरासत का जिन जिन का हक है, इनहेरिटर्स जो हैं, उनके अंदर फिर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करो। अब आप देखें कि हम लोग जो हैं, यानी हमारे मामलात कैसे, हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने फेवरेट किड के लिए हम लोग यहाँ वहां डंडी मार देते हैं, हिसाब किताब में हम लोग गबन कर जाते हैं, करते हैं हम, अल्लाह हमें माफ करे। और इनका जो तर्ज अमल है वो देखें कि एक छोटी सी चीज, ये कोई गोल्ड ज्वेल या एसेट की बात नहीं हो रही है, ये किस चीज की बात हो रही है? ये हो रही है फ्रूट्स की, जो पेरिशेबल आइटम है। लेकिन आप देखें उनका तकवा, देखें उनका ईमान, देखें, ओके। उसके बाद अब इसमें एक और एक चीज नोट करने की है कि जैसे उन्होंने ये कहा, आयशा रदियल्लाहु अन्हा इमीडिएटली शी अग्रीड, और उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को एक्शन में डाल दिया। अब एज अ डॉटर उन्होंने भी कोई आर्ग्यू नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया मैं आपकी बेटी हूं, आप दूसरों को दे रहे हैं ये वो। जो हम लोग नाउ कंसिडर आवरसेल्व्स एज अ डॉटर, और कंसिडर आवरसेल्व्स एज अ पेरेंट, कि हमारे पेरेंट अगर हमको कोई हक की बात बताएं या कोई दीन के रिलेटेड बात बताएं, तो हम लोग इस तरीके से नहीं बिहेव करते हैं। हम कैसे बिहेव करते हैं? हम आर्ग्यू करते हैं, हम ऑफेंसिव हो जाते हैं, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। और जहां पर हुक्म है कि अपने पेरेंट्स के साथ उफ नहीं करना है, हम उफ छोड़ के सारे बुरे कलिमात का इस्तेमाल करते हैं। अपनी जबान को दो धारी तलवार की तरह हम यूज करके कत्ले आम कर देते हैं, और इतना गुनाह अपने अंदर हम लोग ले लेते हैं कि अल्लाह ताला का गजब जो है, नौजुबिल्ला, कि यानी इट एंगर्स अल्लाह अज़्ज़ वजल। जब कभी कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ इस तरीके का मामला करती है, तो यू आर अट्रैक्टिंग अल्लाह's wrath। सो ये आप देखें कि ये कितना भयानक मामला है। लेकिन ये देखें, हुक्म उन्होंने दिए एक, औलाद ने मान लिए। इस तरीके का टू वे अफेयर है। ऑल रिलेशंस आर सो ब्यूटीफुल बिकॉज इनके अंदर फियर ऑफ अल्लाह है, इनके अंदर दीन उतरा है, दिल के अंदर, रूह के अंदर। उसके बाद अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु saying, lo, from the day I have put in charge of the affairs of the Muslims until this very day, I have not taken a single extra dinar or dirham from them। हम लोगों ने पिछला एक किस्सा सुना था कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की जो वाइफ थी, उनको कुछ मीठा खाने का दिल था, तो उन्होंने एक्स्ट्रा बक्स मांगे, तो उन्होंने कहा कि वी डोंट हैव एक्स्ट्रा वेल्थ। तो वाइफ ने कहा ठीक है, मैं उसको सेव करूंगी एंड देन आई विल ब्रिंग इट। उन्होंने सेव किया, सेव करके शी गेव द मनी टू अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के इंग्रेडिएंट्स ले आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेजरर को वापस कर दिया और कहा ये मुझे एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, पुट इट बैक। इमेजिन द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस दिस मैन हैड। ही इज सेइंग फ्रॉम द टाइम आई हैव taken the charge of the affairs, I've put in my stomach the lowest quality and least desirable of the foods। यानी अब आप देखें हम लोगों ने क्या किया है, हमने हमारी नेसेसिटी, जो फूड हमारी नेसेसिटी है, उसको हमने एक एक्स्ट्रा लग्जरी या प्रिविलेज बना के हमने अपनी लाइफ में शामिल कर दिया है। और ये जो खलीफा, द फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर ऑफ द एंटायर पावरफुल मुस्लिम नेशन, ये कहते हैं मैं लोवेस्ट क्वालिटी और लीस्ट डिजायरेबल फूड इस्तेमाल किया हूं मैंने। मसलन अब मैं आप लोगों को, आई एम नॉट आस्किंग यू गाइस कि आप लोग अल्लाह की जो आपको नेमत मिल रही है या जिस तरीके से अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप उसको छोड़ के लीस्ट क्वालिटी और लीस्ट डिजायरेबल फूड में आए। लेकिन आई एम सेइंग दैट डोंट गिव इट ओवर इम्पोर्टेंस, इतना ज्यादा, हद से ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस ना दें। इट इज जस्ट अ नेसेसिटी। हम जो हैं जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। लेकिन हमने अपना उल्टा कर दिया है काम, हम खाने के लिए जी रहे हैं। तो उसको बदलना है, परसेप्शन को शिफ्ट करना है। एंड देन वो जो है कहते हैं मैंने अपने ऊपर कोर्सेस, रफ गारमेंट पहना है। वी रेड अबाउट इट प्रीवियसली कि कैसे एक जो चीफ्टन आए थे, उन्होंने देखा कि ये खलीफा का
क्या हाल है, और वो महंगे रोब्स विद हीरे जवाहरात जड़े हुए, उन्होंने भी फिर उनको कॉपी किए. वी हैव रेड ऑल दैट. तो दिस इज व्हाट ही डिड. इनफैक्ट उनको जो वॉर बूटी, जो माल गनीमत में जो उनका हक, जो शेयर मिलता था, उसमें से उनके पास क्या चीज बची थी? 3 चीज बची थी. एक स्लेव, एक कैमल जो वो उनके खेत खलिहान को पानी देता था, और एक पीस ऑफ पाम ब्रांच. पीस ऑफ पाम ब्रांच मसलन पाम जो है खजूर के झाड़ की टहनी है, मे बी उसमें खजूर होंगे, या दे यूज्ड टू यूज दोस थिंग्स फॉर मल्टीपर्पस इन देयर हाउस. तो वो 3 चीज थी. वो 3 चीज भी उन्होंने कहा कि उमर रदियल्लाहु को पहुंचा दो, क्योंकि मैं जो है अपने आप को वॉश हैंड्स कर दूं, क्लियर हो जाऊं. When Abu Bakr's messenger took the said items to Umar radiallahu anhu cried so much that his tears literally made a small stream on the ground. उमर रदियल्लाहु अन्हु इतना रोए कि उनके आंसू जो जारी थे उससे ऐसी जमीन पे एक छोटी सी धार बन गई. And all the while he was saying, may Allah have mercy on Abu Bakr radiallahu anhu. Ever since the Prophet died, he has worked himself to the point of exhaustion. उनको दुआ देने लगे और कहने लगे कि जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी, तब से बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की है, काम किया, बहुत एग्जॉस्ट हो गए. According to one account, as Abu Bakr radiallahu anhu was on the verge of death, he said, verily, Umar forced me to take 6,000 dirhams from the Muslim treasury for covering my day-to-day expenses. In return for that amount, take my garden, which is situated in such and such place. जब उनका डेथ टाइम करीब आ रहा था, तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको जबरदस्ती 6,000 दिरहम दिए मुस्लिम ट्रेजरी से, उनके डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, और कहा कि इन रिटर्न फॉर दैट अमाउंट टेक माय गार्डन व्हिच इज सिचुएटेड इन सच सच प्लेस. और फिर उसके बदले में जो उनका गार्डन था, जिसको वो कैमल के थ्रू पानी देते थे, वो उनको वो एक्सचेंज में कर दिया. After Abu Bakr radiallahu anhu died, his last request that his garden should be donated to the Muslim treasury was mentioned to Umar radiallahu anhu, who then said, may Allah have mercy on Abu Bakr radiallahu anhu. Verily, he did not want to give people any opportunity to say anything about him, to accuse him of anything. तो वो जो गार्डन था उसको भी उन्होंने वक्फ कर दिया मुस्लिम ट्रेजरी में. और उमर रदियल्लाहु अन्हु फिर उनको दुआ देते हुए कहते रहे कि उन्होंने एक भी नुक्ता नहीं छोड़ा कि कोई लोग उनको किसी भी बात के लिए अक्यूज करें. Final days of Abu Bakr radiallahu anhu. The last day of Abu Bakr's illness was Monday, the 22nd of Jumada al-Akhirah. The year was 13th Hijrah. Aisha radiallahu anha related that Abu Bakr radiallahu anhu asked her that day, on which day did the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam died. अब वो पूछ रहे हैं कि कौन से दिन में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई. तो उन्होंने कहा मंडे को, और वो इवनिंग टाइम था. एंड द डे ऑफ ट्यूसडे वाज अबाउट टू बिगिन. सीकिंग टू डाई ऑन द सेम डे एज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु said, I verily hope that my time will come sometime between now and the end of this night. यानी उनकी चाहत थी, प्यार देखें आप, वो कहते थे कि उनकी वफात मंडे को हुई है और ट्यूसडे के करीब था, यानी असर मगरिब के टाइम. एंड उनकी भी चाहत हुई कि वो भी मंडे के दिन जाए. तो वो आयशा रदियल्लाहु अन्हा को कह रहे हैं कि मेरा भी टाइम जो है इस बीच ही आने वाला है. He then asked Aisha radiallahu anha, in what did you enshroud the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? She said, in 3 white suhuli garments from Yemen, and neither a shirt nor a turban was added to him. Abu Bakr radiallahu anhu said, look at this garment that I'm wearing now, and you will find a saffron stain, so wash it and use it to enshroud me along with other 2 garments. I mean, can you all imagine this? He's discussing about his kafan now. वो पूछे उनसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कफन में क्या यूज किया गया. उन्होंने कहा कि 3 सुहुली गारमेंट जो थे वो व्हाइट कलर के फ्रॉम यमन, उसको यूज किया गया, और ना तो शर्ट ना तो टर्बन ऐड किया था. तो वो कह रहे हैं जो मैंने अभी ये पहना हुआ है, इसके ऊपर एक दाग है सैफरन का, ओके, जाफरान का एक दाग है, उसको वॉश कर लेना और 2 और एडिशनल कपड़े लेके मुझे कफन करना. अल्हम्दुलिल्लाह. Those gathered around him were surprised that he was using an old garment. And so one of them said, Allah has provided us with great wealth, so why should we not enshroud you in new garments? अब जो उनका वो पुराना सा था रफ गारमेंट, उसको यूज किया जा रहा था. तो किसी ने कहा कि जब अल्लाह ने वेल्थ दिया है तो हम आपको न्यू गारमेंट में क्यों नहीं कफन करें. तो उन्होंने कहा, verily the living are in more need of covering themselves with something new than are the dead. Verily the dead are headed towards decay and the filth matter that is underneath the ground, where insects eat up their bodies. What he's saying कि नए कपड़े की जो जरूरत है वो जिंदाओं को ज्यादा जरूरत है मुर्दाओं से, क्योंकि हम तो है आगे चल पड़े हैं, जहां हमने रॉट होना है, डीके होना है, और हम जो है कीड़ों का खाना बनने वाले हैं बॉडी हमारी. 2 of the Abu Bakr's last commands were that his wife Asma bint Umais radhiyallahu anhu should wash his body and that he buried alongside the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. दो उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी कि उनकी वाइफ जो है आसमा बिन्त रदियल्लाहु अन्हा वो
उनको गुस्ल दे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको दफनाया जाए। और उनके लास्ट वर्ड्स थे, माय लॉर्ड cause me to die as a Muslim, the one submitting to your will, and join me with the righteous। ये सूरा 12 वर्स नंबर 101 है। तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन, ये कुरानिक दुआओं में ये दुआ मौजूद है। सो दिस इज हिज लास्ट विश कि मुझे एज अ मुस्लिम उठाया जाए जो कि सबमिट करता है अल्लाह के सामने, और मुझे सालिहीन में से, राइटियस लोगों में उठाया जाए। There are few golden sayings of Abu Bakr, तकरीबन 9 है, एक्चुअली बहुत ज्यादा है, but in this book 9 are written। मैं उसको क्विकली रीड कर देती हूँ आपके लिए। विश फॉर डेथ एंड यू शैल बी ग्रांटेड लाइफ, मौत की हसरत करें और आपको जिंदगी अता की जाएगी। प्यूरिफाई योर सोल एंड अदर्स विल ट्रीट यू बेटर, अपने नफ्स, अपनी रूह का तज़किया करें, उसको प्यूरिफाई करें, तो दूसरे जो है वो आपको आपके साथ बेहतर मामला करेंगे। टॉकिंग टू मच कैन मेक वन फॉरगेट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ज्यादा बात करने से जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो इंसान भूल जाता है। अल्लाह हैज मर्सी ऑन हिम who helps his brother in need, अल्लाह उसके साथ रहम का मामला करता है जो अपने भाई की मदद के लिए खड़ा हो जाता है। Righteous deeds save a person from tribulations, नेकियां जो है वो आजमाइशों से बचा देती है। A good deed is not really a good deed if it takes one to the hellfire. An evil deed is not really an evil deed if its reward is paradise. तो एक नेकी जो है वो असल में नेकी नहीं है अगर वो चीज, वो अमल जो है आपको जहन्नम नौजुबिल्लाह की तरफ ले जा रहा है, और एक बद काम नहीं है अगर वो आपको जन्नत की तरफ ले जा रहा है। A person whose heart is deprived of the light of Iman has no deen or way of life. जिसके दिल में ईमान की रोशनी नहीं है उसकी जिंदगी में दीन भी नहीं है। There is no reward for any action not accompanied by a sincere intention to gain the pleasure and reward of Allah Azza wa Jal. किसी भी काम के लिए अजर नहीं है अगर आपकी जो नियत खालिस अल्लाह की रजा पाने के लिए ना हो। I wish I was a tree that could be cut and used. वो कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं झाड़ होता और मुझे कट करके यूज में लाया जाता। यानी सी बीइंग यूजफुल टू द सोसाइटी, टू द कम्युनिटी, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, फॉर द सेक ऑफ दीन। कितना जरूरी है अपने आप को एबल और केपेबल रखना। Abu Bakr radiallahu anhu was exceedingly afraid of being held accountable for his deeds on the day of judgment. Abu Bakr radiallahu anhu का fear क्या था? वैसे आपको पता he was fearless। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जब वो केव का किस्सा हुआ था उसके बाद से उनको किसी भी चीज से डर नहीं था। लेकिन वो कौन सी चीज है जिससे उन्हें डर था? कि अल्लाह ताला के सामने किसी भी डीड के बारे में अकाउंटेबल हो, हिसाब किताब हो उनको, उस चीज से उनको डर था। सुभान अल्लाह। Grief stricken Ali radiallahu anhu praises Abu Bakr radiallahu anhu. The city of Medina literally trembled on the day that Abu Bakr radiallahu anhu died. Apart from the Prophet's death, and the people of Medina had never witnessed a sadder day nor shed more tears. Hearing the sad news, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu hurried towards Abu Bakr's house, saying, "Verily, we belong to Allah, and to whom is our return." Ali radiallahu anhu then stood outside the house where Abu Bakr radiallahu anhu died and made the following long speech in which he addressed Abu Bakr radiallahu anhu. मदीना में यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये एक बहुत गमनाक दिन था, बहुत सदमे वाला दिन था, बहुत ज्यादा आंसू और गमगीन माहौल था, मातम का दिन था बिल्कुल। और ये उनके डेथ की खबर सुनते ही अली रदियल्लाहु अन्हु पहुंचे और फिर उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और फिर वो उनके घर के बाहर लोगों के सामने एक एड्रेस स्पीच करने के लिए खड़े हुए। उन्होंने अबू बकर के बारे में, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु के बारे में क्या कहा। उन्होंने पहले उनको दुआ दी और फिर उनको कहा वो जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन थे। ओ अबू बकर, may Allah have mercy upon you, you were the closest companion and the friend of the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. You were a comfort to him. You were the one he trusted most. If he had a secret, he would tell it to you, and if he needed to consult someone regarding a matter, he would consult you. You were the first of your people to embrace Islam, and you were the most sincere of them in your faith. Your faith was stronger than any other person, as was the degree to which you feared Allah. And you were wealthier than anyone else in terms of what you acquired from the religion of Allah Azza wa Jal. You cared most for both the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam and Islam. And of all people, you were the best companion to the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. You possessed the best qualities. You had the best past. You ranked highest, and you were closest to him. And of all people, you resemble the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam the most in terms of guidance and demeanor. Your ranking was higher than anyone else's, and the Prophet ﷺ honored you and held you in higher esteem
than anyone else. On behalf of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and Islam, may Allah reward you with the best of rewards. He's saying, जहाँ तक okay, he was the best friend of Nabi sallallahu alaihi wasallam. उनको सबसे ज्यादा उनको ट्रस्ट करते थे. कोई सीक्रेट हो तो वो उनसे पहले शेयर करते थे. कहीं एडवाइस चाहिए तो उनको कंसल्ट किया करते थे. और वो उन लोगों में से थे जिन्होंने दीन पहले कबूल किया. बहुत सिंसियर रहे. उनका ईमान सबसे स्ट्रांग था और वो अल्लाह से बहुत ज्यादा डरते थे. वो इतने ज्यादा वेल्दी थे, यानी रिच थे, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मामले में, दीन के मामले में बहुत अमीर थे. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केयर भी करते थे और इस्लाम का भी ख्याल उन्होंने रखा और लोगों का भी उन्होंने ख्याल रखा. और इतनी अच्छी क्वालिटीज उनमें थी. वो पास्ट में बेस्ट थे, हाईएस्ट रैंक था और वो उनके सबसे ज्यादा क्लोज थे. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो रिजेंबल करते थे हिदाया के मामले में. और उनकी रैंकिंग जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में बहुत हाई थी. एंड फिर उनको दोबारा से वो दुआ देने लगे. When the people disbelieved in the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, you believed in him. Throughout his life, you were both his eyes with which he saw, his ears with which he heard. Allah has named you truthful in his book when he said. अब ये सूरा 39 वर्स नंबर 33 की वर्सेस उन्होंने कहा कि जब आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब बिलीव किया जब किसी ने भी उनकी बात पे यकीन नहीं किया था. You remember the किस्सा of Isra al-Miraj when nobody was believing और वो लोग जो है उनको बुली कर रहे थे, मॉक कर रहे थे. तभी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु instantly on that spot he believed. उन्होंने कहा आप उनकी आंखें बने, आप उनके कान बने. और इसलिए अल्लाह ताला ने आपको as-Siddiq का टाइटल दिया हुआ है. कौन सी सूरा में? सूरा नंबर 39 वर्स 33. And he Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has brought the truth, this Quran and Islamic monotheism, and those who believe therein, the true believers of Islamic monotheism, those are al-muttaqun, the pious and the righteous. When people were stingy in their support for the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, you comforted him. When people sat still, you stood side by side with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, facing the same hardships that he faced. In times of hardship, you were truly a good and the noble companion of his. You were the second of two, as his companion in the cave, and the one upon whom as-sakina, peace, tranquility, and calmness descended. You were his companion during the migration to Al-Madinah, and you were his successor regarding the religion of Allah and his nation. A truly good successor you proved to be when the people apostatized. You did what no other Khalifa of a prophet did before you. You stood up firmly and bravely when his other companions lost their resolve and became soft. And when they became weak, you adhered to the methodology of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. You truly were, as the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, weak in your body but strong regarding the commands of Allah, humble in yourself but lofty in your ranking with Allah, well esteemed in the eyes of people, honored and great in their hearts. Not a single one of them had any reason to dislike you, to be suspicious of you, or to hold you in contempt. Okay, let me translate this. उन्होंने फिर कहा कि आप कभी भी बखील नहीं थे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करने में आप कभी भी बखील नहीं थे. Sorry. Okay, so he's saying कि आप कभी भी बखील नहीं थे उनको सपोर्ट करने के लिए. आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कंधे से कंधा मिला के आप उनकी हिजरत में भी मौजूद थे और आपके ऊपर सकीना उतारी गई थी अल्लाह की तरफ से. और आप जब लोग मुर्तद हो रहे थे, आपने ऐसी ऐसी चीजें की जो आपसे पहले किसी ने भी खलीफा ने या किसी भी आपको खलीफा कंसेप्ट उससे पहले नहीं था. इस सदी किसी भी सहाबा ने नहीं किया. आपने उस तरीके से रिजॉल्व किया मैटर. जहां पर नरमी दिखाने की जरूरत है आप नरम हुए, जहां स्ट्रांग होने की जरूरत थी, सख्त होने की जरूरत है, आप वहां पर सख्त हुए. एंड आपने अल्लाह के सामने और लोगों के सामने एक अपना मकाम बनाया. Not a single one of them had any reason to dislike you, to be suspicious of you, or to hold you in contempt. यानी कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नफरत, कोई भी ऐसी फीलिंग्स अगेंस्ट हिम नहीं रही किसी के भी दिल में. अल्हम्दुलिल्लाह. The weak and humble you have always treated as strong and honorable, making sure you gave them what was rightfully theirs. In this regard, you have treated relatives and strangers alike. इन्होंने हमेशा आदल का मामला किया, चाहे उनके रिश्तेदार हो, कोई गैर हो, गरीबों और मिस्किनों का ख्याल रखा. All people you respect those who are most obedient to Allah. क्या मियार था उनको लोगों के साथ अपनी कुर्बत एहसास करने का कि जिसमें जितना तकवा और अल्लाह की मोहब्बत थी वो उनके उतना करीब था. उनकी औदा, उनका पैसा, उनकी नेम फेम ब्यूटी नहीं.
In your overall character, you embody truth and compassion. Your speech has always been characterized by the qualities of wisdom and decisiveness. उनके जो कलेमात थे उसके अंदर हमेशा हिकमत होती थी, हमेशा एक डिसीजन पावर था, उनकी बात में सच्चाई थी, हमदर्दी थी. And you have always struck a noble balance between the gentleness and firmness. वही जो मैं आपसे कह रही थी कि उनके अंदर वो एक सेंस ऑफ अदल था कि कब सख्ती करनी है, कब नरमी करनी है. और ये क्वालिटी में हम सब मार खा जाते हैं. हम जो है वो ऑपोजिट कर जाते हैं. जहां पर नरम होना चाहिए वहां सख्त, जहां सख्त होना चाहिए वहां नरम. You have always based your decision on knowledge, and once you have made your decision, you have always kept a firm resolve to execute them. उन्होंने हमेशा अपना डिसीजन जो है नॉलेज के ऊपर बेस्ड रखा था. ऐसी अंधाधुन फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म नहीं. उन्होंने अपना एक डिसीजन नॉलेज के ऊपर बेस्ड रखा था. और अगर उसको उस पे वो डिसाइड कर लेते थे तो उस पे जमे रहते थे. Verily, to Allah do we belong, and to Him is our return. We are pleased with and we submit to Allah's decree. By Allah, other than the death of Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muslims have never been afflicted with a greater calamity than the calamity of your death. You have always been a protector, a sanctuary, a source of honor for this religion. May Allah Azza wa Jal make you join the company of His Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, and may He not deprive you of your reward. And may He not lead us astray after you. Ameen ya Rab. उन्होंने कहा कि बेशक आप जो हैं अल्लाह की रज़ा से राजी रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये सबसे बड़ी कैलेमिटी है मुस्लिम उम्मा पे. लेकिन यानी अगेन ही इज गिविंग हिम दुआ कि मे अल्लाह गिव हिम व्हाट ही डिजर्व्स, उनको कंपनी मिले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उनके बाद उम्मा जो है वो गुमराह ना हो. People who had gathered around Ali radhiyallahu anhu listened to his speech, all cried with raised voices and said in unison, indeed you have spoken the truth. वो सब रोने लगे ज़ारो क़तार, और फिर उन्होंने इकट्ठे एक आवाज में कहा कि बिल्कुल बेशक आपने हक कहा है. Muslim scholars unanimously agree that Abu Bakr radhiyallahu anhu died at the age of 63. Nabi sallallahu alaihi wasallam died at the age of 63. There is something to do with 63, पर मैं वो न्यूमरोलॉजी के अंदर नहीं जाऊंगी, अल्लाहु आलम, but there is something about 63. जो कि एग्जैक्ट एज थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी व्हेन ही डाइड. एज पर हिज इंस्ट्रक्शन अबू बकर का गुस्ल अस्मा बिन्त उमैस रदियल्लाहु अन्हा ने किया और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी दफनाया गया. In his grave, Abu Bakr's head was placed parallel to the shoulders of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and the side compartment of his grave was placed directly beside the grave of Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. During the burial process, each of the falling person descended into Abu Bakr's grave. उनकी जो पोजीशन थी, शोल्डर के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरेलल उनका हेड था, और करवट से साइड में उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाला, आप मदीना गए होंगे, आपने देखा होगा, उधर उनको दफनाया गया था. बुरियल प्रोसेस में उनकी कब्र के अंदर जो उतरे थे वो थे उमर रदियल्लाहु अन्हु, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु, तलहा रदियल्लाहु अन्हु, अब्दुर रहमान इब्न अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, और उनकी फ्यूनरल पे जो नमाज जनाजा थी वो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने लीड किया. ग्रेटेस्ट मुस्लिम ऑफ द उम्मा. When a number of delegations arrived from Kufa and Basra in Al-Madinah to present themselves to Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, they began to discuss who was better of the two, Abu Bakr radhiyallahu anhu or Umar radhiyallahu anhu. Some said Abu Bakr radhiyallahu anhu, while others argued from Umar radhiyallahu anhu. अब उमर रदियल्लाहु अन्हु खलीफा की सीट पे बैठ गए हैं. उनसे मिलने के लिए कुफा एंड बसरा से रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट्स आ रहे थे, और इनके बीच में एक डिस्कशन शुरू हुई कि कौन बेहतर है, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु या उमर रदियल्लाहु अन्हु. Among these men were Jarud ibn Mu'alla radhiyallahu anhu from the tribe of Abdul Qais. Jarud had been a part of delegation from the Abdul Qais tribe that on 10th Hijri had presented himself to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarud radhiyallahu anhu was a chieftain and had a superior intellect. When he became a Muslim, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam expressed great joy and welcomed him with much honor and hospitality. Because he had met the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jarud radhiyallahu anhu was also acquainted with Abu Bakr radhiyallahu anhu. According to Jarud, Abu Bakr radhiyallahu anhu was better than Umar. अब इनके बीच में एक सहाबा है जिनका नाम है जरूद इब्न मुअल्ला. ये अब्दुल कैस की ट्राइब को बिलोंग करते थे, और ये डेलीगेशन था 10 हिजरी में जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे. जरूद रदियल्लाहु अन्हु चीफ थे और थोड़े सुपीरियर इंटेलेक्ट के थे, यानी ज्यादा इंटेलिजेंट थे. जब वो मुस्लिम हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए थे, उनको वेलकम किया, उनकी तीमारदारी की, और फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिले और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को भी मिले. और फिर उन्होंने कहा, फाइनली जब ये डिस्कशन चल रही थी, कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु उमर रदियल्लाहु अन्हु से बेहतर थे. When Umar radiallahu anhu arrived and heard the debate, he reprimanded those who gave him precedence over Abu Bakr radiallahu anhu. Jarud radiallahu anhu proceeded to say, Amirul Mu'minin, wait. May Allah never show us the day
when we give you precedence over Abu Bakr radiallahu anhu. He then began to list the distinguishing characters of Abu Bakr radiallahu anhu. Hearing this, the anger of Umar subsided and his face lit up with joy. Later that evening, Umar radiallahu anhu climbed the pulpit and said, "Listen carefully. The best of this ummah after the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. If any person says otherwise, I will punish him." उमर रदियल्लाहु अन्हु जब आए, उन्होंने ये डिबेट सुनी तो वो नाराज हो गए, वो गुस्सा हो गए. उन्होंने कहा, आप लोग, आपकी मजाल कैसे कि आपने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु से मुझे आगे जगह दी है. इस पर जारूद रदियल्लाहु अन्हु केम इन एंड उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आप रुकें. फिर उन्होंने कहा, हमने ये खुराफात नहीं की, हमने अबू बकर के आगे आपको नहीं प्लेस किया. फिर उन्होंने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु की अच्छी क्वालिटीज को लिस्ट करना कहना शुरू किया, जिससे उमर रदियल्लाहु अन्हु का गुस्सा ठंडा हुआ और उनके चेहरे पे एक लाइट आ गई, खुशी का एहसास हो गया. फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ऊपर पल्पिट पे गए और अपने सीट पर बैठ गए. फिर उन्होंने कहा कि कोई भी द बेस्ट पर्सन ऑफ उम्मा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो बेस्ट आदमी रहा है हमारी उम्मत में, वो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु. अगर किसी ने इसको बदला या चेंज करने की कोशिश की तो मैं उसको पनिश करूंगा. अला इन्ना अफदल हादिहिल उम्मती बाद नबियहा अबू बकर. सो that is the line and that is where we end. मैंने लास्ट पेज की लास्ट लाइन पढ़ी है, एग्जैक्टली 3:02. सुभान अल्लाह, एग्जैक्ट टाइम पे. मुझे ऐसा लगा था शायद हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह we completed the book from cover to cover. May Allah make us one among those जो कि हम इनकी कंपनी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी और अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की कंपनी और बेहतरीन सहाबा, ताबईन के सहाबा, इनके साथ मुकर्रबों में शामिल हो. May Allah Ta'ala forgive us, may Allah Ta'ala protect us, our generation, और अल्लाह ताला हमको हिदायत दे, इस्तिकामत दे, तौफीक दे. But alhamdulillah, it has inspired me a lot and I have learned a lot. और now you guys can unmute yourself and continue sharing your things. Ameen ya Rab. हाँ जी, we are done for today. It's a open forum for 5 minutes, then inshallah we'll close the session. किसी ने कुछ शेयर करना चाहता है तो please go ahead. Anybody wants to say anything? Farheen, Bashira, Husna, Rukhsar. First of all, Jazakallah khair for taking us through this beautiful, journey. Yeah, absolutely. Absolutely. Very nice. Absolutely. Very nice. Alhamdulillah. यानी जिस तरीके से Lot of lessons, lot of things we learned through. Yeah. Something new also, but kind of reminders. Yes. Reminders and new stuff. दोनों ही For हुआ. us to work on, on amal जज़ाकल्लाह करने के लिए. खैर नसरीन आने for all अल्हम्दुलिल्लाह. your efforts. या जिस तरीके से अल्लाह ये may जर्नी reward you करती for है. this. आमीन या रब, आमीन वजमाइन या रब. आप लोगों को भी, क्योंकि आप लोगों ने भी अपना टाइम लगाया माशाल्लाह. यस सोबिया. जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर. मैं भैया कुछ आपको क्लासेस मिस कर गई, थोड़ा सा मसले की वजह से. मेरी क्लैश आ रहा था किसी क्लास में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज सुना है. बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह ताला आपको जज़ा दे. आमीन या रब. अभी जिस तरीके से सीक्वेंस चल रहा था कि लाइक आई एम लिटरली इमेजिनिंग कि जैसे उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु सैट ऑन द पल्पिट. सो आई वाज थिंकिंग लाइक सीक्वेंस के हिसाब से उमर इब्न खत्ताब की हमको स्टोरी पढ़नी थी, बट देन इन बिटवीन जैसे रुखसार ने सजेस्ट किया कि दे हैव नॉट डन द अर्रहीक अल मख्तूम, तो इंशाल्लाह हम लोग पहले अर्रहीक अल मख्तूम करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी एंड सीरा को पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग वी विल जंप टू उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु. ठीक है, तो इंशाल्लाह आज है ट्यूसडे, सो वी हैव 2 days इन दिस वीक. तो हम लोग कल से इंशाल्लाह अर्रहीक अल मख्तूम शुरू करने वाले हैं. तो ऑल दोज ऑफ यू जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो रहना चाहते हैं या किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो करें, बिकॉज इसमें खासियत क्या है पता है, यू शुड नॉट मिस द सीक्वेंस. इसमें ना ये पूरी एक स्टोरी टेलिंग है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, एंड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक या उसकी सही परसेप्शन समझना है तो आपको बीच में से मिस नहीं करना है. समटाइम्स होता है कुछ अगर मिस हो जाए तो गो बैक इमीडिएटली लिसन टू दैट पार्ट ऑफ ऑडियो, बिकॉज मैं इसीलिए ही क्या कहते हैं अपलोड कर रही हूँ वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे, कि हमारा एक जो हम काम कर रहे हैं, जो भी थोड़ा बहुत हम काम कर रहे हैं वो प्रिजर्व हो सके, वो उसका एक बेटर यूज हो सके, क्योंकि अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी है एट आवर फिंगर टिप्स, तो हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें. तो सीक्वेंस में रहें, जमे रहें. कुछ वक्त अपना दिन का जो है हमको ये सारे कामों में डालना है.
इल्म हुसूल करना है, दावा का काम करना है, तो अपने आप को थोड़ा सा फारिग करें, गैर जरूरी चीजों से अपने आप को फारिग करें। और आप देखें कि ये सारी स्टोरीज पढ़ने के बाद एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी, एक अलग जज्बा, एक अलग इंस्पिरेशन मिलती है। लाइक आई डोंट नो, आई फील इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी स्टोरीज हमें आनी चाहिए, ये हमारे टिप ऑफ द टंग पे होनी चाहिए, और हम हमारे बच्चों को, सबको हम ये बैठे बैठे हमेशा नरेट करना चाहिए, एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए। इट्स ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह जी। सो कल के लिए तैयार सारे? अनदर जर्नी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह जरूर। जज़ाकल्लाह खैर। भैया जज़ाकल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।